जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी महाराज, शुक्राना मेरे हनुमान जी महाराज। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਸਤੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਓ, ਔਰ ਜੋ ਨੰਨੇ ਪਿੱਤਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗੈਰੇਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਓ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਧ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ 43 ਸਿੱਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। 43 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ 43 ਸਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ
43 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦਿਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ 43 ਦਿਨ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਸੀਂ 43 ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਈਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੋ ਕਰਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ 7 ਅਨਾਜ ਲੈਣੇ ਆ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਸਾਬਤ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਸਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਜਾਂ ਓਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰੀਅਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਵਾਪੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਵਿਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत ढेर सारा प्यार दिता है। हर पल हर घड़ी एक एक सਕਿੰਟ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ कीमती चीज दूर होने वाली है, जल्दी से सत्संग सुन के कष्ट कटवा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਨੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਬਾਲਕਨੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਦਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਬਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ 10 12 15
ਕਊਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦੂਤ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ 2 ਪੀਜਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਏਦਾਂ ਗਈ ਹੈ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆ ਨਾ ਪਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਲ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਸਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੈ ਮਾਂ ਕਾਲਿਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਓ ਸਭ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे बेटे को आज बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो गुरु जी ने टाल दिया। संगत जी मेरा बेटा 30 तारीख को रनिंग को गया था और उसकी रनिंग निकल गई थी, और उसके बाद उसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, और वो एक दिन वहाँ रहा और उन्होंने बाहर का खाना पीना किया, और वहाँ पर से वापस आ गए। घर आकर उसे इतनी पोटियाँ लग गई, पता नहीं लगा क्या हुआ। और हमने उसे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने दवाई दी है उसको। उस वक्त तो फ़र्क पड़ गया, अगले दिन उसे फिर पोटी नहीं आई, और उसके अगले दिन उसे फिर पोटियाँ लग गई, फिर पोटियाँ लग गई। और उसने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन उससे पोटियाँ लगी हुई थी, उसने हमें नहीं बताया। फिर भी
मैंने उसे कहा कि शाम को हम जा रही हूँ डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने और तुम भी दिखाओ डॉक्टर को, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कह रहा मम्मा मैं नहीं जाऊँगा, मैं ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर शाम को जब वो शॉप पे गया और थोड़ा सा काम किया और उसको मोमेंट होने लगी और उसने आके होने लगी और उसको बहुत कमजोरी हो गई। और उसके बाद रात को भी उसको बहुत ज़्यादा मोमेंट हो रही थी। 2:30 बज के हमारा भी काम नहीं करा कि डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन हमने कहा था सुबह देखेंगे। सुबह करते करते उसको बहुत ज़्यादा जोरा हो गया और उसका बीपी कितना कम हो गया हमें नहीं मालूम था। हम डॉक्टर के पास लेकर डॉक्टर ने कहा कि इसका बीपी से 35 रह गया है। तब गुरुजी ने हमें वहाँ पर पहुँचाया। गुरुजी ने इतना बड़े बच्चे का कष्ट काटा। डॉक्टर कह रहे थे अगर दोपहर के बाद लेके आते तो पता नहीं क्या होता। जय गुरु जी, शुक्राना नंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा आज हॉस्पिटल में एडमिट है। पहले सुबह मैं उसके पास गई थी और फिर मैं वापस आ गई उसके कपड़े लेकर। फिर मैंने उसके सारे कपड़े आके धोए और फिर दोपहर को 1 बजे फिर मैं उसके पास चली गई और डॉक्टर ने कुछ खाने को नहीं दे रहे थे। उसको बस ORS का घोल ही दिया जा रहा था। उसको बहुत इन्फेक्शन बढ़ गई थी। फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और डॉक्टर ने कहा कि आप अच्छा हुआ इस टाइम पे जहाँ ले आए। मैंने क्या होता गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे बेटे पे आया था जो टाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख का शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे बच्चे के लिए गुरु पास से अरदास करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम व शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जैसे आप सबके कष्ट काटते हैं वैसे ही अपने बेटे के कष्ट भी काटना, उसको जल्दी से ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ही बेटा है जो आप नहीं कर है। गुरु जी मैसेज आ रहा था कि गुरु जी कहते तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो मैंने टाल दी है। अब शुक्रवार के दिन गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय मेरे गुरु पा। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मैं सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज दिन शुक्रवार है और ये मेरे शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
गुरुजी महाराज ने जब से मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरा वो हर पल हर घड़ी साथ दे रहे हैं। मेरे परिवार पर अभी भी मारण क्रिया बार बार हो रही हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे बच्चे से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं। और आज 2 दिन हो गए मुझे मेरे बच्चे से रिलेटेड ही सत्संग सुनाए जा रहे हैं। उसमें था कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। और दूसरा था आज मैंने कि मेरे बच्चे को अस्थियाँ खाने में मिलाकर खिलाई जा रही हैं, सत्संग धीमी आवाज़ में चलाकर छोड़ दे। शुक्राना बाबा, आप जो मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हो, अनंतम अनंत शुक्राना। और आज मेरे हस्बैंड अंकल को लेके भी मुझे एक सत्संग सुनवाया। तेरे पति के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से तू बहुत परेशान में और बीमार रहती है। ये सत्संग घर पे चढ़ा के छोड़ दे। 22 साल पुराना ब्लैक मैजिक ख़त्म करने की शक्ति रखता है ये सत्संग। इसके हर एक शब्द मेरा आशीर्वाद छुपा है, इसे इग्नोर ना करे, क्योंकि इस वक्त तेरे पति जिसके भी वश में है उसका जिक्र मैंने इस सत्संग में किया है। तू भी बच जाएगी और तेरे बच्चे और तेरा पति भी बच जाएगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना, जो आप हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं मायूस होती हूँ, गुरुजी के बार में मैसेज आते हैं, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों टेंशन ली हुई है? जब तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, जब पूरा संसार हमें गिरा हुआ मान लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं, जैसे भी हम पर ये ब्लैक मैजिक स्पेल होते हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो तब खड़ा होता है शिव का भक्त, राख से उठकर आग बनकर। मत सोचो कि किसने साथ छोड़ा, मत गिनिए कितनी बार टूटा। शिव कहते हैं हर बार टूटो, हर बात बिखरो, लेकिन इस बार खड़ा है ऐसे हो तेरे अंधेरे में भी तुझसे डरने लगे। तेरी तकदीर नहीं बदली तो खुद को बदल, तेरा समय नहीं बदला तो अपने भीतर शिव को जगा। जिस दिन तूने ओम नमः शिवाय सिर्फ जपना नहीं, जीना शुरू किया, उस दिन तेरे लिए हर बंद दरवाज़ा टूट जाएगा और एक नया ब्रह्मांड खुलेगा। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, तेरे गिरने का मजाक बनाएंगे, पर याद रखो संगत जी, शिव कभी भीड़ में प्रकट नहीं होते। वो तो सुनसान जगह शमशान में मिलते हैं, जहाँ संगत जी जब हम सब अकेले हो जाते हैं, सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, वहीं से हमारा तपस्या शुरू होता है। और उस दिन हमारे भीतर का काल भैरव जगा होता है, तो हमें कहता है उठ, ना हार मान, ना रुक, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान ही नहीं, हम शिव का अंश हैं। इसलिए संगत जी, अपना मंत्र जाप करते रहिए, अपने गुरु का गुणगान करते रहिए। वही हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगे, जो हमें ये ब्लैक मैजिक या स्पेल, इन सब से हमें यही बचाएंगे। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए हम अकेले हैं, क्योंकि गुरु पा हमारे हमेशा हर घड़ी हर पल हमारे साथ कर रहे हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। कभी कभी संगत जी हम थक जाते हैं, खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते और उम्मीद रखते रखते थक जाते हैं, रिश्ते निभाते निभाते, हर बार सफाई देते देते, अपने को मनाते मनाते। पर सच ये है कि जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन संभलना खुद को ही पड़ता है। इसलिए गुरु पा हमें ये सब सिखा रहे हैं, हमें कैसे चलना है, पर संभलना हमें खुद को ही पड़ेगा। शुक्राना बाबा, अनंतमन शुक्राना। और संगत जी, एक श्री कृष्ण जी का मैसेज आया था, जब जीवन में तुम्हें कोई ठुकराए, अपमान करें या तुम्हारे अच्छे कर्मों का भी मजाक उड़ाए, तो ये मत भूलो, तुम्हारी कीमत वही पहचान सकता है जो खुद अमूल्य हो। दुनिया अक्सर उसी को निशाना बनाती है जो सबसे अनमोल हो। इसलिए संगत जी, जो भी अभी हमारे साथ हो रहा है, ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल, कोई भी हमें नीचा गिराता है, तो हमारे महाशिव हमारे साथ ही खड़े हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। ये मेरे महादेव ही हैं संगत जी, सुख में भी महादेव, दुख में भी महादेव, आस में भी महादेव, पास में भी महादेव, और विश्वास में भी महादेव। हर हर महादेव। ये गुरु जी महाराज जाने अनजाने में और संगत जी मेरे से सत्संग करने में
कोई भूल चूक हो गई हो या न्यूनता अधिकता क्षमा करना। और बाबा, जैसे अभी आपने मेरे बच्चे, मेरे परिवार को सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट कटवाया, उसके लिए शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ऐसे ही बाबा, मैं और भी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ, वो भी थोड़ा ब्लैक मैजिक वगैरह से परेशान है, तो प्लीज़ उनको भी ऐसे ही ब्लेस करना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना बाबा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटे शुक्राना कर, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। और आज 5 सितंबर का ये मेरा संध्या वेले का दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि चिंता न कर, तेरे पति अंकल की बुद्धि में ठीक करूँगा, वो तुझे मान सम्मान भी देगा और तुझसे ठीक से बात भी करेगा। तू बस शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट मैं काटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरी पैरों की नसें ब्लॉक हो गई है, इसलिए तुझे दर्द रहता है। तू 11 तुलसी के पत्ते, 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी लेकर सुबह के टाइम इन सबका काढ़ा बनाकर पिया कर। धीरे धीरे ये दर्द खत्म हो जाएगा। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे शरीर में कैंसर की बीमारी फैल रही है, तू संगत सुना कर और कष्ट कटवा। गुरुजी, आपकी बेटी नादान है, ये सब सुन के डर जाती है। गुरुजी, आप ही हो जो ये कष्ट कटवा सकते हो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। गुरुजी, आप अपनी बेटी के हॉस्पिटल जाने, अपनी बेटी को हॉस्पिटल जाने मत दो। संगत सुनकर ही कष्ट कटवाएगा। गुरुपा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके दोनों पोतों का ख्याल कौन रखेगा? गुरुपा, उनको भी ब्लेस करो, उनकी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुरुपा, उनको सद्बुद्धि। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा और एक संग है। गुरु जी कहते थे कि तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं उसे छोटे में ही काट दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर आया और मुझे देख के रोने लगा, तो मैंने बोला कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो कुछ बोला नहीं। बाद में बोला कि खेलते खेलते एक दोस्त का धक्का लगा और मैं नीचे 3 सीढ़ियों से गिर गया। और बोला कि मम्मा, अगर दूसरी साइड गिरता तो उधर खंबा था, उसका मेरे सर पर लगता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमसे हमारे साथ ही होते हैं। मेरे बेटे की थोड़ी सी खुरज भी नहीं आई, लेकिन हाथ में थोड़ी सूजन थी। डॉक्टर के पास गई तो बोली नॉर्मल है, उन्होंने दवाइयाँ दी और हम घर आए। ऐसे ही हमारे गुरुपा हमारे कष्ट छोटे काट देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से
बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो है हम सत्संग शेयर करने से पहले अपने प्यारे प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहेंगे। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी हमें क्षमा करेगा। हमारी प्यारी संगत जी आप सभी हमें क्षमा करिएगा। और हमें तो सत्संग शेयर करने आता नहीं गुरु जी, आप ही करवाइएगा। हमको तो कुछ नहीं आता, आप ही सत्संग शेयर करवाइएगा। और संगत जी हम अपने गुरु जी से पहले तो क्षमा चाह रहे हैं। हमारे गुरु जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। और एक दिन 2 दिन ही हो लगभग जहाँ हमें याद है कि हम कल भी नहीं सत्संग शेयर कर पाया और परसों का तो क्या कहें जो है। तो गुरु जी माफ़ करिएगा, हम सत्संग नहीं शेयर कर पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन देने के लिए। गुरु जी हमें संगत जी रोज़ ही गुरु जी दर्शन देते हैं तरह तरह बटरफ्लाई के रूप में। कल तो संगत जी जिस कलर के कपड़े में मतलब वाइट और येलो कलर के मिला के जो है कपड़े हमने डाले थे, तो बस ज़्यादातर उसी कलर में गुरुजी आपने हमें दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना दर्शन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरुजी आपको। और संगत जी जो है परसों भी सुने थे, तो जैसा कि हम जैसे बता रहे हैं सत्संग शेयर कर नहीं पाए। गुरु जी की तो रोज छोटी बड़ी इतनी सारी ब्लेसिंग होती, इतनी ब्लेसिंग की याद भी नहीं रहता। उनकी तो रहमतें बरसती ही रहती हैं जो है। बाकी जो है संगत जी परसों की बात जैसे कि बता रहे हैं, गुरु जी सत्संग में सुनवाया है कि अरे तेरे पेट में इन्फेक्शन होने वाला है, डॉक्टर को दिखा। तो जो है जिनके अंकल जी के द्वारा सत्संग में सुनवाया तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और जो है डॉक्टर ने गोली दिया। तो वो अंकल बताने लगे कि जो है मैंने एक ही गोली लिया था, बाकी गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका से जो है बस एक ही बार ली। मतलब होता है कि हमने गोली बराबर खाया नहीं, बस एक ही बार। तो कह रहे थे कि गुरुजी के चंदन टीका और जल प्रसाद से ही हमारा पेट सही हो गया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपने हमारा भी कष्ट कटवाया। तो संगत जी सच में हमारे जो है कल से हम ज़्यादा ही महसूस करें कि हमारे पेट में कुछ जैसे पानी नहीं पी रहे ना, कुछ अजीब सा मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं। और इधर देख रहे हैं कि हस्बैंड को भी जो है 2-1 बार टॉयलेट ज़्यादा जा रहा है। ऐसे तो सुबह शाम हर कोई जाता है, लेकिन देख रहे हैं कि दोहरा के जा रहे हैं। मैंने देखा कई दिन ऐसे। तो बाकी जो है गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस तरह सत्संग सुनवा करके आप अपनी संगत का कष्ट कटवाते हैं, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जो है संगत जी भाई का भी मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और जो है उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। तो इस सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो हालांकि संगत जी हम तो उस समय सुन नहीं पाए। तो कल फिर आया कि तेरे भाई का जो मतलब कि जो कष्ट था वो मैंने, जबकि संगत जी देखिए हम सुन भी नहीं पाए, जहाँ तक हमें याद है हम नहीं सुन पाए। लेकिन आज फिर मैंने देखा कि तेरे भाई का जो संकट था वो मैंने काट दिया है। और सत्संग सुनने से तो कुछ था कि कष्ट कटवा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। और एक था कि तेरे मायके
कुछ ऐसे था कि तेरे मायके परिवार के साथ धोखा होने वाला है, पता नहीं कुछ सही से याद नहीं आ रहा है संगत जी। तो एक सत्संग में सुना है गुरुजी कि उनका मकान था, पता नहीं क्या लोन लिए थे, कर्जा था, कुछ ऐसे बता रहे थे कि जो कर्जा मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से बच गया, और कर्जा जो लोन था वो भी उन्होंने छोटा बताया कि रकम था वो मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से कहने लगे कि हो गया ख़त्म हमारा वो कर्जा, और जो है मकान उनका बताया कि बच गया, ऐसे कुछ था। गुरुजी माफ़ करिएगा, जितना मुझे याद है वही बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो भी हो मायके परिवार का हमारा कुछ ऐसा कष्ट था, घर संबंधित आपने सत्संग सुनवाया, तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। वहाँ का संकट काटने के लिए, संकट हटाने के लिए, टालने के लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी किडनी और लीवर से संबंधित तो कैंसर से संबंधित तो संगत जी तो रोज़ ही आते हैं, और बेटा बेटी के रोज़ आएंगे कि बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, कष्ट कटवा सत्संग सुन के। बेटा का भी आएगा कि सत्संग सुन करके कष्ट कटा, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। हाँ संगत जी, परसों की अभी जो है हम सत्संग शेयर नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी का था मैसेज की, और मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट कष्ट अपने ऊपर लिया, काट दिया मैंने। और शुक्राना कर दो गुरुजी, माफ़ी चाह रहे हैं, हम इतने नाशुक्र सच में हैं, बहुत ही सच में अपनी गलती मारे, हम बहुत आलसी बहुत बुरे हैं सच में गुरुजी। अब क्या बताए हैं वो जो है संगत जी, गुरुजी ने बताइए जो है जहाँ तो जितना हो सके कहते हैं ना गुरुजी का, जितना हम लोग शुक्राना करें उतना भी कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी के शुक्राना करने के लिए। जितनी उनकी रहमतें बरस रही हैं, बरसती अपनी संगत के ऊपर, हर छोटे बड़े संकट से, हर छोटी बड़ी बीमारी से गुरुजी रक्षा करते हैं। लेकिन देखिए संगत जी, आया कि तेरे बेटे का मैंने संकट अपने ऊपर लिया है, शुक्राना कर, लेकिन फिर भी संगत जी देखिए मेरे जैसी कितनी ख़राब संगत हूँ मैं उनकी कि क्या बताऊँ सच में संगत जी, फिर भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी। पता नहीं ऐसा लगता है ना संगत जी कि कई बार मैसेज ही बहुत ज़्यादा इस तरह, तेरे ऊपर काली क्रिया करवाई जा रही है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, सत्संग सुन ब्लैक मैजिक कटवा अपना। सच में संगत जी इस तरह बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं कि काली क्रिया कराई गई है, ब्लैक मैजिक है, तंत्र क्रिया कराई जा रही है। और आज भी माता रानी का मैसेज था कि शत्रु अपना घर पूरा भर रखा है सामान से, तांत्रिक क्रिया करा रहा है, और तेरे ऊपर नारियल के गोले रख करके, और तेरी मतलब ऐसे था कि मुझे मारना चाहता है, मेरी मृत्यु है। और मैसेज भी आ रहे हैं रात से ही गुरुजी के देखा है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे ऊपर। और नीम करोली बाबा के भी मतलब एक संगत से मैंने सुना है कि उन्होंने कहा बहुत बड़ा तेरे ऊपर संकट आना है, कुछ नहीं डरना, मैं हूँ और मैं सब देख लूँगा, और तू बस राम राम लिख। तो नीम करोली बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इस पूरे जो है परिवार की सबकी रक्षा करने के लिए उनको लख लख बार शुक्राना, हमारे नीम करोली बाबा जी को भी, और हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हमारी जान आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हम उस दिन माफ़ी चाहते हैं, नहीं कर पाए, आपने कहा भी शुक्राना कर, सच में हम बहुत एहसान फरामोश अपनी गलती मान रहे हैं गुरुजी, क्षमा करिएगा। आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, हम तो आपके चरणों की धूली हैं गुरुजी जो है। तो जो है माफ़ी मांग रहे हैं गुरुजी, इस बात के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं कि हम नहीं कर पाए शुक्राना, और फिर भी आपकी रहमतें रोज़ ही बरस रही, फिर भी आप रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। उसके बावजूद हमारे गुरुजी, सच में आप बहुत बहुत प्यारे हो, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो सच में। जैसे हम सत्संग में सुनते हैं ना कि आपकी तो जितनी तारीफ़ करी जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, तो सही बात है हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, हमारी जान, सच में आप बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जो है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और जो है इस बात के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि चाहे बच्चे का हो, चाहे अपना हो, किसी का भी हो, जो कर्म हमारे रहते हैं, हमारे हमें भोगना रहता है, वो आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी, इस बात के लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। और बस ये क्षमा मांगने के अलावा और हमारे बस में क्या ही है गुरुजी, हम कर ही क्या सकते हैं, हमें तो आप ही का सहारा है हम सबको गुरुजी। तो बाकी आप अपना भी ध्यान रखा करिए गुरुजी, पूरा पूरा ध्यान रखा करिए हमारे गुरुजी, आप सदा मुस्कुराते ठीक ठाक रहिए, अच्छे से रहिए, फिट फाट रहे हमारे गुरुजी। आप हम सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, कई बार ज़्यादातर ऐसा ही होता है, इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी। बाकी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अरबों खरबों बार लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
पुत्र की रक्षा करने के लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और जो है ये भी सुना है संगत जी कि गुरु जी तेरा बेटा लाखों में करोड़ों में कमाएगा, तेरा बेटा तेरा बहुत नाम रोशन करेगा, उसकी चिंता ना कर, बहुत नाम करेगा। तो गुरु जी बच्चे तो आप ही के, आप ही को देखना है, आप ही को संभालना। आपने ये भी मैसेज भेजा जो है कि जो है तेरा एक था, आज मैंने देखा कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो गुरु जी हालांकि जो मैंने उस दिन महसूस किया, अभी मैं जो सोच रही हूँ गुरु जी, तो उस समय मुझे भी कुछ मतलब अजीब सा लगा। संगत जी लड़का जबकि अभी 9-10 साल का है, पर जो गलती कर रहा है जो मैंने देखा, तो गुरु जी ऐसा कुछ ना, अभी जो अभी कितनी उम्र है उसको, आप तो बुद्धि बदल देते हैं गुरु जी। तो बाकी उसके कुछ मारे कर्म है, उसके लिए क्षमा मांग रहे होंगे, उसके जन्म पिछले जन्म में कोई कर्म, इस जन्म में तो अभी इसको उम्र 9-10 साल की है, इस जन्म में भी कोई अब कोई गलती कर रहे हैं तो उसके लिए समाचार है। तीनों बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करिए, सभी के बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करिएगा गुरु जी। कोई बच्चा हो सभी के बच्चों को ब्लेस करिएगा, और इसको भी सद्बुद्धि प्रदान करिए। जो है गलत संगत में इनकी माड़ी बुद्धि हो, इस सब से रक्षा करिएगा गुरु जी। बच्चों को बचाइएगा, सद्बुद्धि प्रदान करिए, पढ़े लिखे अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छी बातों में इनका ध्यान जाए, एकाग्र अच्छी बातों में, पढ़ाई लिखाई में हो, बड़े छोटे का अदब लिहाज हो, आपकी भी पूजा पाठ भक्ति सेवा में मन लगे, और आप लगाइए तो ही कर पाएंगे बच्चे गुरु जी। जो आप करवाएंगे चाहे छोटा चाहे बड़ा, जब आपकी कृपा होगी तो ही कोई आपकी सेवा भक्ति में लग पाएगा। बिना आपकी दया के तो कहाँ है पॉसिबल है गुरु जी, कहाँ मुमकिन है। तो जो है बाकी प्रार्थना आपसे गुरु जी कि बच्चों को सदा बच्चों के अंग संग रहेगा, सदा आपका आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर सदा सदा रहे गुरु जी। जो है और क्या, कोई भी माँ बाप हों, आपकी कोई भी संगत हो, सब लोग हम यही चाहते हैं कि जान रहे, जहाँ तक हम आज तक सत्संग सुन पाए हैं, आपकी सभी संगत परिवार आपको बहुत प्यार करते हैं। बस हर माँ बाप को ही रहता है कि बच्चे अपना पढ़ लिख लें, बाकी तो और हमारे लिए तो हमारे गुरु जी ही सब कुछ हैं, आप में ही हमारी सारी खुशी है बाकी। और जो है संगत जी कैंसर का भी एक सत्संग सुनवाएं गुरु जी की। जो है ऐसे पता नहीं था कि तेरे परिवार में किसी को गले का कैंसर हो, ऐसे कुछ था कि बीमारी होने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो सत्संग तो जो है गुरु जी हमने सुना ही, आपने सुनवाया, बाकी आपने कष्ट तो कटवाया ही सत्संग सुनवा के, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनपो खरबो बार शुक्राना गुरु जी। आप ही को देखना है परिवार में, चाहे बच्चे हो, चाहे आपकी ये दासी हो, चाहे जो है हस्बैंड जी हो, कोई भी, सभी की रक्षा आप ही को करनी है गुरु जी। आप ही का परिवार, आपके घर परिवार, आप ही के बच्चे, सब कुछ तो आप ही का है गुरु जी। आप ही को तो देखना है, आप ही को बचाना है, आप ही को रक्षा करना है, आप ही का परिवार है। इस घर गृहस्थी की नाव की जो डोर है गुरु जी, वो तो आप ही के हाथ में है गुरु जी, जैसे मर्जी वैसे चलाइए। और हाँ, आपने कहा कि उस दिन कि संगत जी, सच में मुझे नहीं आता जिस तरह मैं बाकी संगत को मतलब देखती हूँ, कितने अच्छे से सब लोग सत्संग शेयर करती हैं, इतने बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट, इतने बढ़िया से, इतने अच्छे, अच्छा लगता है सुन के। तो कहीं ना कहीं सच में संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी था परसों कि शुक्राना करना सीख ले मुझे सच में संगत जी, मुझे तो सच में नहीं आता। तो कई बार मन में ऐसा भी होता है कि जब आता नहीं है तो कैसे करें, और शर्म भी लगता है कि हमें आता नहीं तो कैसे करें। फिर भी जो है कोशिश कर रहे हैं गुरु जी, बाकी जो है आप हमें सिखा दीजिएगा तो ही कर पाएंगे। और खुद से तो कहाँ किसी की क्षमताएं नहीं है, या कोई जो है आपका शुक्राना बिना आपकी कृपा आशीर्वाद से कोई कर भी पाएगा। जो थोड़ा मोड़ा जो कोई कर पाता है उसमें आपकी आशीर्वाद रहता है गुरु जी, तभी कोई कर पाता है। हम तो वो भी नहीं थोड़ा मोड़ा जो बोल रहे हैं, ये तो आप ही की कृपा है गुरु जी, बाकी क्षमा चाह रहे हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी जो है बाकी आपकी प्यारी संगत जो सब लोग हैं, सभी की तरह हम भी सीख जाए, हम भी करने लगे गुरु जी। और क्षमा चाह रहे हैं इसीलिए हम कल नहीं करिए गुरु जी की, जब हमें आता ही नहीं सही से, हम कर नहीं पाते तो फिर हम क्या करें। हमें खुद से भी संगत जी जो है सच कहें ना, जो हमारा सत्संग कई बार आया ना हमारे सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक से नहीं कर पाते सबकी तरह। तो हमारा सत्संग जब आता है ना,
चलता रहता है, कई बार सुनेंगे, कई बार ध्यान नहीं देंगे कि मतलब है। बाकी संगत का तो हम बहुत सबका ध्यान से सुनते ही, बात नहीं है, कई बार नहीं भी सुनते हैं। बच्चे हैं, घर में रहना रहता है, कई बार कोई बोल दिया, कई बार ध्यान काम में चला गया, भी है, हो ही जाता है लापरवाही। इसके लिए तो क्षमा चाह रहे हैं आप सबसे भी, गुरु जी से भी माफ़ी मांग रहे हैं। बाकी कोशिश करते हैं, लेकिन अपना तो बिल्कुल भी संगत जी नहीं, क्योंकि हमें ठीक से तो आता नहीं करने। बाकी गुरु जी करवाएंगे। क्षमा चाह रहे हैं गुरु जी इस बात के लिए। और जो है मम्मी का भी था एक सत्संग परसों सुनवाए गुरु जी की, तेरी मम्मी ऐसे कुछ था कि कमज़ोर हो रही, तेरी मम्मी को भी मैंने ब्लेस किया है, ऐसे कुछ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। माँ के परिवार के ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, ये प्रार्थना है आपसे। और जो है हस्बैंड जी की भी बुद्धि सही करिए गुरु जी, इनकी भी बुद्धि ठिकाने लगाइए, सही करिए। और जो झूठा नकाब परिवार में सब लोग इनका नकाब चेहरे पे ओढ़ के अपनापन दिखाते हैं कि ये हम तो बड़े भाई, हम तो बड़ी भाभी, या हम तो माँ का ननद का संगत जी कई बार सत्संग गुरु जी सुनवाए, जेठ जेठानी का सुनवाए कि मतलब इनके ऊपर काला जादू प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो सभी का चेहरा प्रार्थना है आपसे, इनको दिखवाइए असली चेहरा। और भी कोई संगत हैं जिनके जीवन में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो उनके भी पति लोगों का, उनके असली, उनके परिवार का चेहरा दिखाएं। जो परेशान हो, हमारी बहनें कोई भी जो है, जो तकलीफ़ इस बात से हो, टेंशन हो, मानसिक टेंशन, उनका भी ये टेंशन दूर करिए गुरु जी। हाँ, बाकी कोई भूल चूक हुई हो गुरु जी सत्संग शेयर करने में तो क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी क्षमा कर दीजिएगा। और सारी संगत परिवार को खूब ब्लेस करिएगा, खूब जो है ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी। और हमारा जो ये सत्संग जिस चैनल पे हम शेयर करते हैं, उनको, उनके जो हस्बैंड अंकल को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस करिएगा गुरु जी। सभी पशु पक्षी को ब्लेस करिएगा। और जो है ये, हालांकि क्या हम कहें, हमें समझ में नहीं आया गुरु जी हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप जान रहे होंगे, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं डर के मारे। बाकी क्या कहें गुरु जी, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे बस। और तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती गला तेरे बहाने सरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।